براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران پہنچ گئے ہیں۔ شہید ہو گئے تھے۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم آج تہران میں موجود ہیں، جہاں پر وہ ایرانی قیادت سے آپ کو براہ راست کے مناظر دکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت پر ایرانی قیادت سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی وفات پر تعزیتی ہال پہنچ گئے ہیں اور وہ ایران میں موجود ہیں۔ آپ کو براہ راست یہ دکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت پر ایرانی قیادت سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر داخلہ محسن رضا نقوی اور معاون خصوصی طارق چشتی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ اس دورے پر موجود ہیں۔ براہ راست آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت پر ایرانی قیادت سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں اور وہ رفقا کی وفات پر تعزیتی ہال میں موجود ہیں اور رفقا سے وزیر جو صدر تھے ایران کے، ان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت پر ایرانی قیادت سے اظہار تعزیت برا رہے ہیں۔ منڈی بہاولدین کے آکسفورڈ کالج آف میڈیکل سائنسز میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے میڈیکل سائنسز کی اہمیت بارے مختلف خاکے بھی پیش کیے۔ شرکا نے طلباء کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ سی او شاہ نواز سندھیلا نے کہا کہ اپنے قیام کے پہلے سال ہی فارم ڈی کے سالانہ امتحانات میں طلباء نے نمایاں پوزیشن حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ادارہ بہترین اساتذہ اور سہولیات کے باعث معیاری تعلیم کی فراہمی میں نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نذر محمد رانجھا نے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے انیسہ توقیر، اسکا نجم اور نور الایمان کو مبارکباد پیش کی۔ ڈائریکٹر راؤ محمد طاہر اور برانڈ ایمبیسڈر کاشف بلوچ نے بھی بہترین کارکردگی پر طلباء، اساتذہ اور والدین کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی تکمیل۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات نے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فالیہ کے اسپیشل بچوں کی فلاح و بہبود اور تعلیمی تدریسی عمل کو آسان بنانے کے لیے پلے روم کا افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول کے مختلف کمروں میں جا کر بچوں کو تعلیم حاصل کرتے دیکھا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بچوں میں گھل مل گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فالیہ افضال احمد بڑائچ، پرنسپل عامر فیض ہنجرا، سائیکالوجسٹ سائمہ شفیق نے بھی شرکت کی۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال نے سمندری کا دورہ کیا اور نجی این جی او کے اشتراک سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اور میڈم طاہرہ نے ستھرا پنجاب وین کے تحت پودا بھی لگایا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں عبدالحی عباسی کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال نے سمندری ریسکیو اسٹیشن کا دورہ کیا اور نجی این جی او کے اشتراک سے سمندری کے سب سے بڑے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال اور ریسکیورز کی جانب سے میڈم طاہرہ اور ان کی ٹیم کا فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب پر شکریہ ادا کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ اس فلٹریشن پلانٹ سے نہ صرف ریسکیورز کو صاف ستھرا پانی میسر آئے گا بلکہ اہل علاقہ کے لیے بھی یہ پلانٹ کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں راہ انسانیت کا، میڈم طاہرہ اور حق نواز صاحب کا، کہ آج ہمارے سمندری آفس میں ایک بہت بڑے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس سے ہمارے سٹاف کو صاف پینے کا پانی ملے گا۔ وہ لوگ جو بہت ہی بے بس زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ایک امید ہے، تو شکر الحمدللہ جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہم خود چل کر لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں۔ میڈم طاہرہ اور ظفر اقبال نے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت پودا بھی لگایا اور ملک پاکستان کے امن اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد خانقاہ ڈوگرہ میں ٹرانسفارمر درست کرتے ہوئے وابڈا اہلکار اسسٹنٹ لائن مین محمد عمر کا ہاتھ مین لائن سے ٹکرا گیا۔ 11,000 وولٹ کا جھٹکا لگنے سے عمر جان کی بازی ہار گیا۔ جوان بیٹے کی اچانک موت پر گھر والوں پر غصے کے دوڑے پڑنے لگے۔ انتہائی ملنسار ہونے کی وجہ سے شہر بھر میں سوگ کا سماں ہے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے غفلت برتنے والے وابڈا ملازمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاک پتن میں ایک اور بچہ انسانی درندگی کا شکار۔ پاک پتن کے محلہ نور کوٹ میں اوباش کاری نے 11 سالہ سفیان کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزم سہیب کو گرفتار کر لیا۔
بھیرا میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 22 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا. ملزمان مقتول کی لاش قبرستان پیر ملامہ میں پھینک کر فرار ہو گئے. مقتول کی شناخت عدنان کے نام سے ہوئی. قتل کے افسوسناک واقعے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. ایس ایچ او تھانہ روہیلا والی کی کامیاب کارروائی. 9 سالہ بکری کو بازیاب کروا لیا گیا. پولیس نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے نواب پور سندھ سے محمد اکبر کو برآمد کروا لیا، جس پر والدین اور اہل علاقہ نے ایس ایچ او کا شکریہ ادا کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے. تو دوسری جانب پنجاب فوڈ اتھارٹی کی پلرانگو میں کیچپ یونٹ پر کارروائی. 650 کلو باسی ٹماٹر طلب کر دیے گئے. کیچپ یونٹ کی 7 تک پروڈکشن بند کروا دی گئی ہے. خانیوال سے رپورٹ کر رہے ہیں کیسر چودھری. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایات پر خوراک کے نام پر زہر بیچنے والوں کے خلاف پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن جاری. تفصیلات کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیم نے پل رانگوں پر کیچپ یونٹ پر کارروائی عمل میں لائی. دوران انسپیکشن خراب ٹماٹروں کے استعمال سے مضر صحت کیچپ تیار کی جا رہی تھی. سینکڑوں کلو گرام کیچپ تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کی جانی تھی. قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر فوڈ بزنس مالکان کو بہتری تک کام سے روک دیا گیا. اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جوید کا کہنا تھا کہ خوراک کی تیاری سے ترسیل تک تمام مراحل کو چیک کیا جاتا ہے. محکمہ زراعت توسیع احمد پور سیال کے زیر اہتمام احمد پور سیال کی بستی نورشاہ گڑھ موڑ میں یوم کاشتکاراں برائے فصل کپاس منایا گیا. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری محمد جوید اسلم اپنی اس رپورٹ میں. محکمہ زراعت توسیع احمد پور سیال کے زیر اہتمام بستی نور شاہ گڑھ موڑ میں یوم کاشتکاراں برائے فصل کپاس منایا گیا، جس میں کاشتکاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. نقابت کے فرائض زراعت آفیسر ملک ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے سر انجام دیے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع تحصیل احمد پور سیال چودھری محمد اکرم اور دیگر زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ کپاس کی فصل اگانے کی ترغیب دی اور انہیں کپاس کی فصل کی بہتر اور زیادہ پیداوار اور نقصان دہ کیڑوں سے بچاؤ کے طریقے بتائے. 31 مئی تک کپاس کی کاشت کا وقت ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ رقبے کو زیر کاشت لائیں اور اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کا مرحلہ شروع ہوگا، جس میں کپاس کی پیسٹ کاٹنگ ہوگی، کھادوں کا استعمال ہوگا اور مناسب زرعی ادویات کا استعمال کرنے کے لیے مشاورت ہوگی. تو میں میرے سمیت میرے محکمہ کے تمام اہلکاران آفیسر ہم کھیتوں میں کاشتکاروں کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے اور ان کو کٹائی تک جب تک ہماری یہ فصل کپاس ٹرمینیٹ نہیں ہو جاتی مشاورت دیتے رہیں گے. یوم کاشتکاراں منانے کا مقصد کپاس کی بحالی، پاکستان کی خوشحالی کے نعرہ کو عملی جامہ پہنا. تانبیہ والی شہر بھر کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا. گندا پانی گلیوں بازاروں میں جمع ہو گیا. ماہی چوک ایریا میں سیوریج مسئلہ وبال جان بن گیا. شہریوں کا گلیوں بازاروں سے گزرنا محال ہو گیا ہے. نالیوں کا گندا پانی کھڑا رہنے سے تعفن پھیلنے لگا. گندے پانی سے بدبو اور مچھروں کی بہتات ہو گئی. میونسپل انتظامیہ کی جانب سے سیوریج مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے میونسپل کمیٹی تانبیہ والی کے ناقص کارکردگی پر نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے. قبولہ شریف میں مدرسے کا معلم جلاد بن گیا. چوک مرلے میں معلم نے 7 سال کی بچی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. والدین نے الزام عائد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مدرسے کے مولوی نے دوران میں پڑھائی بچی پر تشدد کیا اور دماغی ٹارچر بھی کیا ہے. بچی کے والدین اور اہل علاقے کی معلوم کی طرف سے بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر نوٹس اور کارروائی کی اپیل کی ہے. تانبیہ والی کے چک 452 گاؤں پے میں یوم کاشتکاران کا انعقاد کیا گیا. یوم کاشتکاران تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر خالد محمود، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت خالد پرویز، زراعت آفیسر محمد شفیق، فضل الہی بھٹی، کاٹن انسپیکٹر قاور نعمان، زراعت آفیسر محمد اویس نے شرکت کی. علاقے بھر سے زمینداروں اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت خالد محمود نے کاشتکاروں کو کپاس کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی بارے لیکچر دیا. کاشتکاروں نے معلوماتی پروگرام کے انعقاد پر محکمہ زراعت کا شکریہ ادا کیا. ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ٹریفک حادثات پر قابو پانے، ٹریفک نظام میں بہتری اور ٹریفک رواں دواں رکھنے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں فضل جاوید خان.
डिप्टी कमिश्नर भालपुर ज़िले की ज़ेर डीसी ऑफिस कमेटी रूम में इजलास में के द्वारा इजलास में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने, ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी और ट्रैफिक रवां दवा रखने के हवाले से किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भालपुर असद सरफराज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सबाना रबानी, डीएसपी पंजाब हाईवेज पेट्रोल पुलिस इरफान अकबर, डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद रियाज, इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस शाहजहा रमज़ान मोहम्मद आफ्ताब, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अरूज फातिमा, एसडी हाईवेज मोहम्मद इरफान, म्यूनसिपल कारपोरेशन दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। इजलास में बताया गया कि हादसा की रोकथाम के लिए ज़िला की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक साइन बोर्ड निसब और ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद के हवाले से मालूमाती बोर्ड निसब किए जाएंगे। इस सिलसिले में दानिश स्कूल, हासिलपुर, मुसाफिर खाना, पुल बलोचा, पुल शमशाही, एयरपोर्ट रोड, सादे पब्लिक स्कूल, रामा फाटक, लल्लू वाली मोड़ी अड्डा, लाल समारा, DHA पुल और चौक भट्टा अहमदपुर शहर के मुसाफिरों को मालूमात के लिए ट्रैफिक साइन बोर्ड निसब किए जा रहे हैं ताकि ड्राइवर गाड़ियों की स्पीड को महदूद रखें और हादसा से महफूज रहा जाए। इसी तरह भालपुर सिटी एरिया में हादसा पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इक़दाम बुरे कर लाए गए हैं, जिसके तहत तलीमी इदारों में ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद के हवाले से खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। दुबई चौक से वेलकम चौक, सराकी चौक से राजा पेट्रोल पंप तक सड़क को मॉडल रोड बनाया गया है। सड़क पर साइन बोर्ड निसब किए गए हैं जिन पर वन व्हीलिंग और स्पीडिंग, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर पाबंदी और मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए मालूमात दर्ज की गई हैं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर भालपुर ज़िले ने मुतल्लिका महकमे के अफसरान को हिदायत की कि ज़िला में ट्रैफिक हादसा पर काबू पाने के लिए गैर ज़रूरी यू टर्न ख़त्म किए जाएँ, ट्रैफिक साइन बोर्ड की तनसीब के काम जल्द मुकम्मल किए जाएँ। DPO भालपुर सरफराज ने कहा कि हादसा पर काबू पाने के लिए मेन सड़क पर आने वाली राब्ता सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएँ और सड़क पर मालूमाती बोर्ड निसब किए जाएँ। कैमरामैन खुरम इस्ताद के खबर शामिल करें उकाड़ा से। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का खसूसी इजलास DPO उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि जराइम के कंट्रोल के हवाले से जिला उकाड़ा में बेहतरी हो रही है, मजीद की गुंजाइश है। आरजी पंजाब के बयान के मुताबिक मुआशरे के कमजोर और पिसे हुए तबकात की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है। महकमा उमूर कश्मीर की तरफ से कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सेक्रेटरी उमूर कश्मीर के हुक्म पर एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान फील्ड इंचार्ज से एजामिन रिजवी ने अपनी टीमों के हमरा ऑपरेशन करके कई कनाल अराजी वागजार करवा ली। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताहिर मेहदी एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान के साथ मौका पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी बताइएगा अब्दुल्ला। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका तहसील शालीमार मौज़ा रहमानपुरा में, जहाँ पे महकमा उमूर कश्मीर की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महकमा उमूर कश्मीर ने सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों से जो है 14 कनाल तकरीबन 15 कनाल के करीब सरकारी अराजी ऑपरेशन करके वागजार करवा ली है। जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि मशीनरी जो भारी मिकदार में मशीनरी है यहाँ पे सरकारी अराजी वागजार करवा रही है और महकमा उमूर कश्मीर की तरफ से आए रोज़ कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी और सारी रहती हैं। लेकिन इस वक्त ऑपरेशन की जो सरपरस्ती कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जनाब अब्दुल्ला जान साहब, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये कब्जा माफिया के खिलाफ किन पॉलिसी के तहत जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आए रोज़ महकमा उमूर कश्मीर की तरफ से कब्जा माफिया के खिलाफ वैसे तो कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन जब से आपकी तैनाती हुई है कब्जा माफिया को आपने इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया है, किन पॉलिसीज़ के तहत ये कार्रवाइयाँ जारी हैं? देखिए, जो ज़मीन है सारी जो जहाँ पे है जल्लो में, जिधर सुल्तानपुरा रहमानपुरा में, इसका जो स्टेटस है वो है एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब इस पर कोई तामीर नहीं हो सकती। तो ये लोगों ने इलीगल सोसाइटीज़ जो है वो कुछ मतलब ओवर द पास्ट 75 ईयर से ये लोग ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज भी इस तरह हमने डेमोलिशन कर दी। अब हम मज़ीद जगहों पे जा रहे हैं। तो हम अभी पिछले 7-8 महीने से कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जितनी भी है हमने सारी जो है वो डिसअलाउ कर दी है और जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो हम वहाँ पर जाके उनको डेमोलिश कर रहे हैं और जो लोग बाज नहीं आ रहे तो फिर हम उनकी ज़मीनी भी जो टेनेंसीज है वो भी कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये वागजार होने के बाद ये प्रॉपर्टी का कोई बकायदा आपने कोई इसका चेक एंड बैलेंस रखा है ताकि दोबारा कब्जा माफिया इसके ऊपर जो वो ना कर सके कब्जा? देखिए, यहाँ पे ना लोग सॉफ्ट जो ज़मीन ऐसी है जिसका कोई वाली वारिस ना हो या जो टेनेंट्स कमज़ोर हों उनसे कब्जा करवा के काम करवा रहे हैं। तो अगर तो वो जो टेनेंट्स है ओरिजिनल टेनेंट्स है, अगर उसके एग्रीकल्चर पोजीशन को बहाल कर स्टेटस को
बहाल करके वो अगर इस पर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं सो वेल एंड गुड, अदरवाइज इनको हम कैंसिल करके इसको हम ऑक्शन करेंगे और हम ऐसे टेनेंट्स को ये ज़मीन दोबारा देंगे जो इस पर एग्रीकल्चर करेंगे कानून के मुताबिक। जो गैर कानूनी कार्रवाई करेंगे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान साहब और फील्ड इंचार्ज सैयद जामिर रिजवी। उनका ये कहना है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अगर लोग बाज नहीं आएंगे, अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ से हट के इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनके खाते भी कैंसिल किए जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी और उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। आज का ये ऑपरेशन जो है वो 14 कनाल अराजी के ख़िलाफ़ है और वैसे एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान ने तमाम गैर कानूनी। और नाज़रीन, ईद कुर्बान के करीब आते ही बकरा चोर सरगर्म हो गए। कोट राधा किशन में मसर कानूनी से चोर दिन दहाड़े मेहनत कश के बकरे चोरी करके ले गए। बकरे चोरी करने की फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर बकरे कार पर लोड कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ईद कुर्बान के करीब आते ही बकरा चोर सरगर्म हो गए। कोट राधा किशन में मसर कानूनी से चोर दिन दिहाड़े मेहनत कश के बकरे चोरी करके ले गए हैं। बकरे चोरी करने की फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर बकरे कार पर लोड कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैपिटल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैपिटल अस्पताल का तफसीली दौरा किया और इस दौरान अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कैपिटल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान करते हुए चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मास्टर प्लान तलब कर लिया और कहा कि कैपिटल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर समेत इलाज मुआवजे की सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने इमरजेंसी ब्लॉक और वार्ड में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की और इलाज मुआवजे की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। ताहम बेशतर मरीजों ने अस्पताल में फराहम करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि बाज़ मरीजों ने तबी सहूलतों के फुकदान की शिकायत की। कैंसर के मुर्स में मुब्तला मरीजा राहिला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बीमारी के बारे में बताते हुए रो पड़ी और कहा कि 3 माह से आ रही हूँ, कोई तवज्जो नहीं देता। मोहसिन नकवी ने मरीजा को दिलासा दिया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अस्पताल को मरीजा के इलाज के हवाले से हिदायत की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने डॉक्टर से भी मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। कमिश्नर सखर फयाज अब्बासी का सालियापट में बेसिक हेल्थ यूनिट का दौरा। खातून की निजी एम्बुलेंस में डिलीवरी का नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सालियापट माजिद को इंक्वायरी करवाने और अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वेटनरी अस्पताल और एग्रीकल्चर ऑफिस को बंद कर दिया गया। कमिश्नर ने मुआयना के दौरान वेटनरी अस्पताल और एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने कचरे के ढेरों पर बरहमी का इजहार किया। इस मौका पर PPHI के रीजनल डायरेक्टर सराज अहमद ने कमिश्नर सखर को बताया कि डॉक्टर्स की कमी के बायस इदारों में मौजूद स्टाफ मौजूद नहीं है। SP रावल फैसल सलीम के जेर निगरानी थाना न्यू टाउन पुलिस ने कमर्शियल मार्केट में शहरी से रकम छीनने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मुतासर शहरी की जानिब से रावलपिंडी पुलिस और SHO न्यू टाउन को खिराज तहसीन। रिपोर्ट कर रहे हैं नोमान चौधरी। रावलपिंडी रावल सर्कल के थाना न्यू टाउन SHO लुकमान जावेद की अपनी टीम के हमरा अहम कार्रवाई। गुज़श्ता दिनों न्यू टाउन के इलाका कमर्शियल मार्केट से गन पॉइंट पर शहरी को लूटने वाले 2 डिकेट साहिम और कलीम गिरफ्तार मुलजमान से लूटी गई रकम 60 लाख रुपए, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान से दौरान तफ्तीश दीगर वारदातों में छीने के 6 लाख रुपए और लाखों रुपए मालियत का कीमती मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। SHO न्यू टाउन लुकमान जावेद ने अपनी टीम के हमरा CCTV फुटेज समेत जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजमान से माल मसरूका की बरामदगी शनाख्त परेड के बाद की गई। मुतासरा शहरी ने रावलपिंडी पुलिस, SP रावल फैसल सलीम और SHO न्यू टाउन का शुक्रिया अदा करते हुए शाद का इजहार किया। 18 अप्रैल को 2 डाकुओं ने गनमैन को मुझसे 77 लाख रुपए की रकम छीनी, जो कि रावलपिंडी पुलिस ने बहुत कम वक्त में डाकुओं को गिरफ्तार करके मुझसे मेरी रकम जो है ना बरामद करवा दी, जिस पर मैं CPO साहब रावलपिंडी, SP रावल टाउन और न्यू टाउन पुलिस का बेहद मशकूर हूँ। इस मौका पर SP रावल फैसल सलीम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। इस मौका पर CPO सैयद खालिद हमदानी ने SP रावल फैसल सलीम, SHO न्यू टाउन और पुलिस को शाबाश देते हुए कहा है कि शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। रावलपिंडी रावल सर्कल के थाना न्यू टाउन SHO लुकमान जावेद।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नदवी और DGFIA की हिदायत पर ममनुआ गैर रजिस्टर्ड और गैर मियारी अद्वियात की तैयारी और खरीदो फरोख्त में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FIA पेशावर जोन की बड़ी कार्रवाइयां बड़ी मिकदार में जारी और ममनुआ अद्वियात बरामद कर ली गई। छापामार कार्रवाइयां कटलांग बाजार, मर्दान, कोहाट रोड पेशावर और हरीपुर में वाक़या मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर की गई। अद्वियात को कब्जे में लेकर नमूना जात को ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा दिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरियां दर्ज कर ली गई। डेप्यूटी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अतिया इनायत मदनी की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। खुटिया खास में करोड़ों की 6 कनाल 2 मरले सरकारी कीमती अराजी वागजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान, म्यूनिसिपल कमेटी अमला और पुलिस के हमरा में दीपालपुर रोड, खाई रोड पर कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी वागजार करवाई। काबजीन ने सरकारी अराजी पर टोकाजात, खोखे और बकरा मंडी कायम की हुई थी। एसी अतिया इनायत मदनी का कहना था कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। और अब आपको बताएं कि हरीपुर में ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में शफाफियत और मेरिट की बालादस्ती से ही ट्रैफिक के मसाइल में कमी लाई जा सकती है। BSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी की निगरानी में हरीपुर के शहरियों से ड्राइविंग लाइसेंस का और टेस्टिंग का अमल पुलिस लाइन में शफाफ अंदाज में जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद पुलिस लाइन में मौजूद हैं। जी राशिद महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरीपुर पुलिस लाइन में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DSP शहजादी नौशाद गिलानी साहिबा। हम इनसे बात करेंगे और इस हवाले से पूछेंगे ये टेस्ट जो आप ले रही हैं, ये हमने इनको देखा भी है और बड़े बारीक बीनी से टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं, ख़ासकर मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले, वो शहर के अंदर जो हैं इस पे अमल नहीं करते, ट्रैफिक कानून पे, फिर हादसात का शिकार हो जाते हैं। इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे और टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इस तरह है कि हमारा जो ये ड्राइविंग टेस्ट है ये ट्यूसडे को होता है हरीपुर में, और हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, मोटर बाइक, मोटर कार और जीप का। तो ये फ्रेश लोग भी आते हैं, जो अक्सरियत जो है वो फ्रेश लोगों की है, जो नए लड़के हैं 18 ईयर्स से अबव के। अब जब हम इनके टेस्ट लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि दूसरा सवाल आपने किया कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मोटर बाइक वालों के लिए। आपको ने आज देख लिया सारा टेस्ट हमारा, आपने ऑन द स्पॉट आपने देखा सारा कुछ कि मोटर बाइक के लिए हमने इनको हेलमेट का इस्तेमाल कराते हैं और इनको अवेयरनेस दी जाती है। तो इनको यही है मेरी रिक्वेस्ट कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, जो मैं गाय बगाए हमारी डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी है, जो मैं इनसे तमाम अपने स्टाफ को बताया हुआ है कि आप लोग बगैर हेलमेट के जो भी गुजरेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैं इधर भी इनको अवेयरनेस देती हूँ। इसके अलावा इनकी निगरानी में मुख्तलिफ जगह पे ट्रैफिक इंचार्ज जो है वो वक्तन फ़क्तन मोटर बाइक वालों को रोक के उन्हें हेलमेट के हवाले से भी अवेयरनेस देते रहते हैं, मोटर बाइक वालों को और गाड़ी वालों को कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। तो इनका यही कहना है कि वालिदैन को कि वो अपने बच्चों पे भी नज़र रखें और ख़ासकर मोटर बाइक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम देने का सिलसिला जारी है। 16,792 खातीन को सेमाही किस्त दी जाएगी। हमारे नुमाइंदे उस्मान हारूनी इस वक्त डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम OG के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ BISP पेमेंट सेंटर उगी पर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जी BISP उगी के डायरेक्टर अब्दुल रशीद साहब। उनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा जी, क्या तरीका कार है आपका और किस तरह से ये पेमेंट यहाँ पे लोगों तक पहुँचाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई शुक्रिया आपका। तरीक़ाकार हमारा ये है कि हम इस साइड से आउट इन करते हैं और इस गेट से हम आउट करते हैं, और इन करने के पहले हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा। जिसके पैसे आए होते हैं तो उसको हम सेंटर में अंदर भेज, हमारे पास जिसके पैसे शो होते हैं हम उसको अंदर भेज देते हैं। ठीक है। और जिसके पैसे नहीं होते तो हम उसे फर्दर गाइड कर देते हैं कि आपके पैसे क्यों नहीं है या कब आएंगे या जो भी उसका होता है वो हम कर देते हैं। ठीक है। टोटल हमारे पास उगी सेंटर में 16,792 लोगों की पेमेंट उगी में आई हुई है। ठीक। और अभी तक हमने 4,000 प्लस लोगों के पैसे इस सेंटर से दे दिए हैं।
लेकिन इसके साथ हमारे पास ये पट्ट एरिया से भी लोग आते हैं, ये बडग्राम के जिला बडग्राम है, इसका जो जबड़ एरिया ये भी आते हैं। इधर डिस्ट्रिक्ट सुरगर का जो अकाजई का इलाका है, तिलिया संजई है, शेरी पानी है, तो ये लोग भी हमारे पास आते हैं इस सेंटर पे। तो ये 16,000 प्लस हमारे अपने होते हैं और कुछ 5-7 हज़ार भी लोग। तो ये केपी में पूरी है कि बैंक अल्फला काम कर रही है, ठीक है। तो उसका जो बैंक अल्फला का बेनिफिशरी है वो पूरे सूबे में कहीं भी अपने पैसे ले सकता है। तो क्योंकि ये जो मैंने एरिया गिने हैं इनका ये हमें नज़दीक पड़ते हैं। और पेमेंट के लिए हमारे पास 11 सेंटर हैं, पेमेंट सेंटर हैं, जिनसे हम उनको पेमेंट कर देते हैं। काउंटर हैं, पेमेंट काउंटर हैं, ठीक है ना जी। तो पर डे हम तकरीबन 1,000 प्लस लोगों को यहाँ से पेमेंट देते हैं। तो 1,000 प्लस का मतलब ये है कि उनके साथ एक उनकी घर वाला कोई आया होता है, कोई और भी इस तरह आता है। तो ये इस सेंटर पे जो रश होता है पर डे के हिसाब से कोई 3,000, 2,400-2,500 के लगभग लोगों को हम यहाँ मैनेज करते हैं। और उनको अभी तक ऐसा कोई हादसा भी नहीं हुआ और बड़े पुरंदाज तरीके से हमने उनको फैसिलिटेट भी किया है और चेयर वगैरह भी हमने उनके लिए लगाई हैं, पानी सारा कुछ जो है आप देख रहे हैं। मियां चन्नू शहर और गिरदो नवाब में गर्मी का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। गर्मी के सताए अवाम ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर मनान चौधरी से। जी मनान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू में, जहाँ सूरज का पारा हाई होने लगा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए, मियां चन्नू में इस टाइम 46 दर्जा हरारत है और मियां चन्नू के शहरियों ने शरबत का रुख कर लिया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जाते हैं जी जो आप शरबत पीने आए हैं जी, इस टाइम मियां चन्नू में कितनी गर्मी है ये बताएं। जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी। तो असी सारे दोस्त इतने शरबत पीने लिए आने पठान का शरबत, गर्मी बहुत ज़्यादा वा तो शरबत का मज़ा लईदा वा, इंजॉय करीदा वा। गर्मी तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पै रही है तो जिसम नूं ज़रा सुकून मिलता है शरबत पीने की वजह नाल। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना था कि ये शरबत पी के हमारे दिल को सुकून मिलता है और गर्मी में। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट तब्दील कर दिए गए। इस मौके पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तहसील इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। एसी आमिर भट्ट ने हर मुमकिन ताउन पर महकमों के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। तहसील कोर्ट चूनिया में अलविदाई मुलाकात भी की जिसमें साबका सदर पंजाब बार राना सईद अख्तर एडवोकेट, सदर बार असद जमाल एडवोकेट, सरदार मुबशिर एडवोकेट, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर एडवोकेट, सरदार एजाज, सरदार नासिर, राना आकिब जावेद और दीगर ने अलविदाई मौके पर मोहम्मद आमिर भट्ट को चूनिया में गुजारे हुए लम्हात को यादगार बनाते हुए खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से मनशियात फरोशी, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी, केमाड़ी टाउन, बोसिया रोड, गुलशन इकबाल टाउन और इंस्पेक्टर मोहम्मद फासिल शहीद चेक पोस्ट से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरिफवाला पेट्रोलिंग चेक पोस्ट 34 ईबी की कार्रवाई। साहिवाल रोड पर चेक पोस्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल ने एहलकारों के हमरा 3 मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो वो भाग निकले। पेट्रोलिंग पुलिस ने ताकुब करके उनको पकड़ लिया। चोर कीमती बकरा चोरी करके ले जा रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल का कहना है कि शाहराहों पर आवाम को तहफ्फुज़ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मरोट में पानी की सप्लाई कई रोज से बंद। अस्पताल में मरीज, स्कूलों में बच्चे ख्वार होने लगे। वाटर सप्लाई मंसूबे से आवाम मुस्तफीद कम, चंद लोगों ने उसे बिजनेस बना लिया। वाटर सप्लाई मरोट के बिजली के तमाम कनेक्शंस बिल की अदम अदायगी की वजह से काट दिए गए। मजीद जानते हैं रिहायशी इस बारे में क्या कहते हैं। तो बोल रहे हैं जनाब, वाटर सप्लाई का आज तो 5-7 दिन हो गए, निज़ाम बहुत खराब है, पानी नहीं आ रहा। चलती पई सी वाटर सप्लाई, जिन्होंने आन के एक्शन साहब बावल नगर वाले पब्लिक हैल्थ दे नदीम गुजर साहब, SDO मदर साहब, CBM असगर साहब, इन्होंने आन के सारा निज़ाम बंद कराता। चलती वाटर सप्लाई दे आन के दौरान स्टे भी सी, सारा कोई सी। इन्होंने मामलात नूं कुछ इत्थों दे हजरात नाल रल के
ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ ਚੋਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ कबूला शरीफ में मुकदमाबाजी की रंजिश पर मुखालिफिन का वकील और उसके भाई पर बदतरीन तशद्दुद। मुलजिमान ने डंडों राहनी रोड के वार्ड से दोनों भाइयों की टांगे और बाजू तोड़ दिए। कबूला शरीफ वाक़े के बाद मुलजिम फरार, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। और अब आपको बताएं कि मंडी बहावुद्दीन फालिया के गांव रायका के बंद मकान से मां बेटी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मिलने वाली लाशें 2 से 3 दिन पुरानी हैं। शनाख्त 55 साला जहरा बीबी और 20 साला जैनब के नाम से हुई। डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने मां और बेटी की लाशों को तहवील में ले लिया। डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन ने बताया कि घर का सरबराह औरंगजेब रोजगार के लिए दुबई में मुकीम है। पुलिस की टीमें तफ्तीश के लिए तश्कील दे दी गई। मकतूलैन की वजह मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी मलिकवाल में मनशियात से पाक स्कूल के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरा से खिताब करते हुए डीओ एजुकेशन पीर मुख्तार अहमद बदर और डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर राव शफीक अहमद ने कहा कि मनशियात एक लानत है जो मुआशरे के नौजवानों को तबाह कर देती है। आजकल मुख्तलिफ किस्म के जदीद नशा आवर अशिया नौजवान नस्ल बिलखुसूस तलबा और तालबात को तबाह कर रही हैं, जिनसे बच्चों को बचाना हमारा फर्ज आइन है। असातिज़ा तालीमी इदारों में बच्चों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखें। चिन्योट अहमद नगर में पठानों की जगीरों में आग लगने में सबसे बड़ी गफलत रेस्क्यू 1112 की है। कमिश्नर फैसलाबाद और डीजी रेस्क्यू पंजाब मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाएं। मुतासरीन गुज़िश्ता रोज अहमद नगर के इलाके में पठानों की झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी। मुसलसल 2 घंटे जारी रहने वाली आग में 3 दर्जन से जायद पठानों की झुग्गियां जल गई हैं, जिनमें करोड़ रुपए का कीमती घरेलू सामान और दीगर चीजें मौजूद थीं, जबकि मुतादिद जानवर भी झुलस कर हलाक हो गए हैं। मुतासरीन मुसलसल 2 घंटे अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ रहे और बादशाह एहतजाज करते हुए सरगोदा रोड ब्लॉक कर दिया। मुतासरीन का कहना था कि आग लगते ही उन्होंने रेस्क्यू 1112 को फोन कॉल की। 1 घंटा बाद सिर्फ 2 मोटरसाइकिल सवार आए। पठानों के एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर फायरिंग करने वाला वकील निकला। पुलिस चिन्योट मलिक शेर अब्बास होकर एडवोकेट की फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हुए। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माद की ज़ेर निगरानी मंडी बहाउद्दीन में मुमकिन सैलाब से निमटने के हवाले से रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम दरिया जहलम हेड रसूल के मुकाम पर अमली मशकों का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुनाकिदा अमली मशकों का मुआयना किया। तमाम मुताल्लिका महकमों की जानिब से रेस्क्यू फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर का मुमकिन सैलाब से निमटने के हवाले से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माद की ज़ेर निगरानी मुमकिन सैलाब से निमटने के हवाले से अमली मशकों का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 इंजीनियर इमरान खान ने डिप्टी कमिश्नर को रेस्क्यू कैंप्स का दौरा कराया और तफसीली ब्रीफिंग दी। इस दौरान फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने सैलाब ज़दगान को बजरिया कश्ती महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के साथ साथ जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए फील्ड अस्पताल मुंतकिल करने की अमली तरबियत का मुजाहरा भी किया। इसी तरह डूबते शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू के गोताखोरों की अमली मशक का भी मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माद ने रेस्क्यू 1112 समेत तमाम इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, अमली मशकों से तमाम इदारों के दस्तयाब वसाइल आपस में बाहमी रवाबत, मुमकिन सैलाब पर रिस्पॉन्स और आलात की तैयारियों का पता चलता है। रेस्क्यू 1112 हमारा फख्र और दूसरों के लिए रोल मॉडल है। नौशहरा में तहसील जहांगीरा के एक निजी स्कूल में सालाना यौम वालिदैन के हवाले से एक पुरवकार रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा वालिदैन समेत हर मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुनक्कदा तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो और खाके पेश करके आने वाले मेहमानों से दाद वसूल की। मुनक्कदा तकरीब के मेहमान खसूसी अफाक के रीजनल हेड अहमद यार और पश्तू के माया नाज शायर जैतुर रहमान आजिज ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमान खसूसी ने तालीम की आमद पर रोशनी डाली और कहा कि किसी भी माशरे की तरक्की का राज इसकी नौजवान नस्ल की तालीमी काबिलियत और अमली किरदार में बख्शीदा है। उनका मजीद कहना था कि तमाम तलबा पर फर्ज बनता है कि अपनी तालीम पर खसूसी तवज्जो दे ताकि माशरे की कारामद फर्ज बन सके।
शबकदर के इलाके नुसरत जई में जायदाद के तनाजे पर दो तरफा फायरिंग से 2 सगे भाई जां बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को THQ शबकदर मुंतकिल कर दिया। वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी THQ अस्पताल शबकदर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल एबटाबाद की तलबा के सर के बाल काट दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का नोटिस, तमाम स्कूल स्टाफ की मअतली का लेटर जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताएगा क्या वाकया है? एबटाबाद के तलीमी अदारे में अनोखा वाकया पेश आया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की तालिबा के सर के बाल काट दिए गए हैं। मुकदमे में नामजद 2 उस्तानियों और हेड मिस्ट्रेस की जमानत कब्ल गिरफ्तारी भी करवा ली गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो जनाना हैं, उन्होंने तमाम स्टाफ जो है स्कूल का, उसके मतलब लेटर भी जारी कर दिया है। अच्छा, ये जो अफसोसनाक वाकया है, 20 मई के रोज थाना डूंगा गली में नगरी बाले की राशिद खतून ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी जो बेटी है 11 से 12 साल की, गर्ल्स मिडिल स्कूल कतरीला में जेर तलीम थी और 16 मई के रोज स्कूल गई है। जब वहां पर गई है तो 2 मकामी उस्तानियों ने मिलकर उसके सर पर जितने भी बाल थे उनको काट दिया था। जबकि एबटाबाद से जो जाने वाली वहां पर हेड मिस्ट्रेस थी, वो भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्तरद जो तालबा थी उनके सर के बाल काटने के अहकाम जारी कर दिए थे। तो जितना भी स्टाफ वहां पर मौजूद था उस सब का मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जैसे ही ये जो सिलसिला है मुदैया को पता चला है तो वो स्कूल पहुंची है। तो वहां जैसे ही पहुंची तो देखा है उन्होंने कि वहां पर उनकी जो बच्ची है वो रो रही थी और मुदैया कानून से नाबलद होने की वजह से माशरे में बदनामी के डर से खामोश रही। ताहम उसके जो खावन थे वो मंसर में मजदूरी करते थे और जब मुतल्लिका थाने में दरख्वास्त दायर की गई तो थाना डूंगा गली की जो पुलिस है, तफ्तीशी अफसर अयाद खान थे, उनसे जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि मुकदमे मुलव्वस मुलजम स्कूल उस्तानियों और हेड मिस्ट्रेस की जमानत जो है वो 27 तारीख तक हो चुकी है। अब 27 मई को जो है सेशन जज एबटाबाद की अदालत में वो पेश होंगे। पुलिस की जानिब से भी केस की जो फाइल है वो पेश की जाएगी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से तमाम स्कूल स्टाफ मुअत्तली का जो लेटर जारी किया गया है। थाना डूंगा गली में जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो दफात लगाए गए हैं उसमें 337V, 34 PPC, 34 CPA, 328A के तहत दर्ज की गई है। वाकई की महकमाना इंक्वायरी के सिलसिले भी जारी है, लेकिन इस वक्त लवाहिकीन जो हैं उन्होंने इंसाफ की अपील की है। और इस वक्त ये सिलसिला भी है कि स्कूलों में तो यूं तो लड़कों के बाल इस तरह कोई नहीं काटता, इस बच्ची के बाल काट के एक नया मैं समझता हूँ कि माशरे में एक नया अनोखा कारनामा मंजर आम पर ले आए हैं, जिसकी वजह से अब बच्चियां स्कूल में जाएंगी या कहाँ पर जाएंगी, अब तालीम किस तरह हासिल करेंगी बच्चियां। ये मामला जैसे ही पेश आए तो बाकी जो बच्चियां हैं उनको भी डर लगने लगे कि हमारे बाल भी न काट दिए जाएं। जी ठीक है उबैदुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में चीफ मिनिस्टर एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के तहत तलबा में स्कॉलरशिप अवार्ड सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली मीन गंडापुर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सूबाई वज़ीर तालीम मीना खान आफरीदी, MNA शाहिद खटक और दीगर मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में 65 ज़हीन और मुस्तहिक तलबा और तालबात में स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। शिरका तकरीब को चीफ मिनिस्टर एंडोवमेंट फंड के तहत अब तक फराहम की गई स्कॉलरशिप्स पर ब्रीफिंग भी दी गई। चीफ मिनिस्टर एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के तहत अब तक मजमूई तौर पर 546.47 मिलियन रुपए की लागत से 444 स्कॉलरशिप्स फराहम की गई हैं। 302 मिलियन रुपए की लागत से 327 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। पर अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। लाहौर जड़ावाला मोटरवे M3 के इतराफ पर फसलों की बाक़ियात जलाकर आलूदगी का सबब बनने वाले अनासिर की माहौल दुश्मन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मोटरवेज के इतराफ में फसलों की बाक़ियात जलाने के बाक़ियात जारी हो सारी हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद फसलों की बाग़ियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। लाहौर जड़ावाला मोटरवे M3 की बात की जाए तो मोटरवे के तराफ पर फसलों की बाग़ियात जलाकर आलूगी का सबब बनने वाले नासिर की माहौल दुश्मन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मोटरवे के तराफ पर फसलों की कटाई के बाद बाक़ियात को जलाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे का सबब बना जा रहा है बल्कि आलूगी में इजाफे के साथ मौसमियाती तब्दीली में मंफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। माजी में भी फसलों की बाक़ियात की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा माहौलियात और इंतजामी अफसरान को सख्त एक्शन की हदायत की गई थी। ताहम इंतजामिया की गफलत और महकमा माहौलियात की टीम और स्पेशल स्क्वाड की नाकिस मॉनिटरिंग के बाद फसलों की बाक़ियात जलाने का सिलसिला जारी है, जो मुस्तकिल में शहर लाहौर समेत पंजाब भर के शहरियों के लिए खतरे की घंटी बनता हुआ सबब बन रहा है। दूसरी तरफ कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की जानिब से बंद कमरों में इजलास जारी है, लेकिन इंसदात स्मोक कार्रवाइयों के लिए फील्ड में अफसरान गायब है। जी ठीक है जुनैद अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। जाली फूड अथॉरिटी अफसर बनने वाला गिरोह गिरफ्तार, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मौका से 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। जालसाज हैदर और अबू बकर को धर लिया गया। मुलजिमान फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को फूड अथॉरिटी लाइसेंस और मेडिकल के इजरा के लिए धमका कर रकम बटोरते थे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 2 जालसाजों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया था। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि निशानदही पर गिरोह के बाकी मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की हादसाती मौत पर ईरानी कौंसल खाने में ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा समेत दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं ने नायब कौंसलेट आका मकावी से ताज़ियत की। उलमा का कहना था कि इब्राहिम रईसी आलम इस्लाम के लीडर थे। वक्त की क़यादत मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने की। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की हादसाती मौत पर ईरानी कौंसल खाने में ताज़ियत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के उलमा समेत दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं ने नायब कौंसलेट आगा मुगाजी से ताज़ियत की। इस मौके पर मौलाना आसम महमूद का कहना था, इब्राहिम रईसी ने अपनी कायदाना सलाहियतों से बैनुल अक़वामी सतह पर नाम कमाया। आगा मुगावी ईरान ने हमेशा सेहूनी फौज की बर्बियत के खिलाफ मौसर आवाज बुलंद की। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी व दीगर ईरानी हुकूमत की आला शख्सियात की हादसे में नागहानी अमवात पर बैनुल मज़ाहिब कायदीन के वफद की ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात। वफद में अलामा सैयद हसन रजा हमदानी, मौलाना मोहम्मद आसम मखदूम, मॉडरेटर डॉक्टर मजीद एबल, सरदार बिशम सिंह, भगत लाल सिंह खोखर, अलामा मोहम्मद अफजल हैदरी, अलामा अमजद अली जाफरी, सैयद महमूद गजनवी, अलामा कारी खालिद महमूद, सोहेल अहमद रजा, खुरम नकवी, सैयद इम्तियाज काजमी, अलामा बाकर गिल्लू, मुफ्ती शबीर अंजम, सैयद वकार हुसैन नकवी की शिरकत। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर एलडीए इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फ्लैग मार्च किया। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट का काशिफ एवान ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर एलडीए इन्फोर्समेंट स्क्वाड का तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फ्लैग मार्च जो है वो किया गया है। एलडीए इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने एलडीए एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में शाहरा पर फ्लैग मार्च किया। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट काशिफ अवान ने फ्लैग मार्च की क़यादत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर एलडीए इन्फोर्समेंट स्क्वाड को रीवैम्प किया गया है और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के कल रीवैम्प के जो एलडीए इन्फोर्समेंट स्क्वाड था उसका मुआयना भी किया था। इन्फोर्समेंट स्क्वाड के तमाम अमला को नया यूनिफॉर्म, टेक्निकल टूल किट और जरूरी सामान फराहम किया गया है। इन्फोर्समेंट स्क्वाड में गाड़ियां, डंपर, मशीनरी की तादाद में भी इजाफा किया गया है। डीजी एलडीए ताहिर फारूक का कहना है कि इन्फोर्समेंट स्क्वाड में बाइक्स भी शामिल की गई हैं। इन्फोर्समेंट स्क्वाड गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात और दीगर ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पर फ्लैग मार्च किए जाएंगे। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम बारे आगाही फराहम करना है। जी, बहुत शुक्रिया कामरान अली। सूबाई वज़ीर मादनियात सरदार शेर अली गोरशानी से माइन ऑनर्स एसोसिएशन के वक्त की अहम मुलाकात। कोल माइनिंग के तकनीकी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मादनियात का माइन ऑनर्स की मुश्किलात दूर करने की यकीन दहानी करवाते हुए कानकुनी के शोबे में माइन ऑनर्स के ताउन से तरक्की के अज़म का इयादा किया। कानकुनी को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमती इकदाम पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर मादनियात ने माइन ऑनर्स की मुश्किलात के हल के लिए अमली इकदाम का ऐलान करते हुए कोल माइनिंग के पेचीदा अमल में टेक्निकल मामूलात पर रोशनी डाली।
वज़ीर मादनियात का माइन ऑनर्स एसोसिएशन से मुकम्मल ताउन का अज़म करते हुए कहना था कि लीज के दौरानिए और ग्रांट के वक्त से मुतालिक मसाइल पर गौर किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में हेड कांस्टेबल पर प्रमोट होने वाले एहलकारों के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने रैंक लगाए। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में किरण बरकत, एहसान साबिर और बिलाल तारिक शामिल हैं। उस्मान बेग, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद वकास अली भी शामिल हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था बरवक्त तरक्की मिलना पुलिस एहलकार का बुनियादी हक है। कारकर्दगी में निखार पैदा होगा। प्रमोशन से आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें। लाहौर के इलाके आसिम टाउन, रानी पिंड, इल्ताफ कानूनी, नजीर गार्डन में सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अलम फातिमा की जेर निगरानी पटवारी मियां इरफान का हरबंसपुरा में ऑपरेशन। करोड़ों की अराजी वागुजार करवा ली गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर के इलाके आसिम टाउन, रानी पिंड, इल्ताफ कानूनी, नजीर गार्डन में सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ एक्शन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अलम फातिमा की जेर निगरानी पटवारी मियां इरफान का हरबंसपुरा में ऑपरेशन। करोड़ों की अराजी वागुजार करवा ली गई है। आपको एक बार फिर से इस हवाले से अपडेट करते जाएं कि लाहौर के इलाके आसिम टाउन, रानी पिंड, इल्ताफ कानूनी, नजीर गार्डन में सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ एक्शन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अलम फातिमा की जेर निगरानी पटवारी मियां इरफान का हरबंसपुरा में ऑपरेशन जारी। करोड़ों की अराजी वागुजार करवा ली गई है।